That today is the fourth day of our induction program, and today we are going to have the session of Professor Hippargi sir, who is the coordinator of SDCC cell, that is Student Development and Career Counseling cell. First of all, I welcome Shashikant Hippargi sir for this session. Hippargi sir, welcome. Thank you, sir. Thank you. Yes, sir. Let me take this privilege to introduce Professor Shashikant Hippargi sir, who is, as already I have mentioned, that he is a coordinator of Student Development and Career Counseling Cell, which has been newly established in our college. Uh, Professor Shashikant Hippargi sir has completed his BE from BLDEA's CET Vijaypur. He has done his MTech from BMS College of Engineering, Bengaluru. Sir has total 20 years of teaching experience. Professor Shashikant Hippargi sir, who is pursuing his PhD in wireless communication, also sir has qualified GATE examination. So with this short introduction, I welcome Professor Shashikant Hippargi sir for this today's session, who is going to talk something about the SDCC cell, what is the cell all about, and what are its objective, and how the procedure that we are going to follow over here for the betterment of our students. So I request Professor Shashikant Hippargi sir to continue his session. Professor Shashikant Hippargi sir, over to you, please. Thank you, sir. Thank you, Deshmukh, sir. And very good afternoon to all. What I can see that as soon as I sent a good afternoon to all, most of you people have replied. And that is where I feel that you are much active students. Okay. Generally, we are not audible properly, sir. Is it not audible, everybody? Vedant, is it audible now? Yes, sir, it is audible. Oh, okay, that's great. Audible, that's great. sir. Yes, sir. Fine. Audible. Okay, that's done. Good. So this is what I wanted to say, that you all people are very active, and this is a very first sign that I am very happy. You are going to be a part of the whole program and schedule of student development and career counseling cell. I'll present my screen, and then I'll start with the session. Okay. Okay, fine. Is the screen visible now, everybody? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. That's great. Yes, sir. Fine. Okay. So now what we are going to deal with you today is a very important cell. Try to understand what we are going to do in this cell totally from your first year to final year. This is what I'm trying to tell you. Now here there are two things. One is student development, and then there is career counseling cell. Okay. The first part is development of you people so that you will be eligible to get or to choose a particular career in your life. It may be anything, because you are belonging to different branches. So we are not here to discuss which is good and which is bad, but every branch has got equal importance in life. Try to understand that. Maybe it is from any branch, because you can understand that any of the thing which is made in this universe or in this world which is possible is not possible by any of the single branch. We'll take the example later when I'll tell you later when we'll meet one-to-one or when we physically meet. But before that, let me just quickly introduce what exactly is Student Development and Career Counseling Cell, and what we are planning to take you through this, what we are planning, or what we have got the things in this. So the goal of this cell is to enhance the employability skills among the students to meet out the corporate expectations. Okay, see, it is very important that employability skills, ठीक है ना, हम लोग पढ़ तो लेते हैं, लेकिन are we really employable? The most important thing in today's world is that everybody is having degree, everybody is having education, but not everybody is employable. क्या बोल रहे समझ में आ रहा है? But not everybody is employable. Employable का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है हम लोगों में, कुछ स्किल्स की कमी है हम लोगों में, जो हम लोगों को डेवलप करनी है अपने रेगुलर स्टडीज के साथ. So that is what we call it as employable skills. अच्छा, किसके लिए करनी है?
किसके लिए करना है? That we can meet the corporate expectations, means we can meet the industry expectations. Okay, we should have the skills with us which can enhance our degrees to make sure that the corporate people think that कि नहीं यार ये लड़का अच्छा है, ये लड़की अच्छी है, इसमें कुछ तो skills है, and then we can hire them. Okay, then second, to enhance the students interest towards industry expectations. अब दूसरा क्या है? नहीं सर मेरे को इंडस्ट्री में काम नहीं करना है सर, मेरे को कुछ और करना है. Let it be, but let me make it very clear, you go to any one of the field. अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे कि कौन कौन से फील्ड्स हैं आप लोगों के लिए. You go to any one of the fields, but finally we are employable. कोई भी जॉब ले लो दुनिया का, इवन प्राइम मिनिस्टर से लेके प्यून तक का, everybody is employed, everybody is working, everybody's job is fixed. Is it clear what I'm saying? Is it clear what I'm saying? कि from prime minister, president to peon, everybody is employed. सब कोई कहीं ना कहीं किसी के अंडर कुछ कारण से वो काम कर रहा है. Yes, sir. ठीक है ना? So these are the things that we need to understand. Then second one is objectives. Okay, अभी हम अचीव कैसे करेंगे? ठीक है ना? हमने सोच तो लिया कि सर हमें कंपनी स्टैंडर्ड्स के साथ जाना है, कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड्स के साथ जाना है, बट हाउ वी आर गोइंग टू फाइनली अचीव दिस? So look at here the three objectives that we have made for you people. These may get increased depending upon how you people are. Once we deal with you, then objectives may change, but goals will not change. Okay, objectives are to provide the best possible training for the students through continuous training module. And what are those training modules that I'll discuss later? कहीं ना कहीं हम आपको continuous training module दे रहे, means from your first year till 7th semester. I'm not talking about 8th semester, because at 8th semester I am expecting that you should be having at least one offer letter in your hand. So I'm talking from first semester to 7th semester, we should have a rigorous training module. Okay, that is the first thing. Second is to prepare the students for the campus recruitment. Okay, we are expecting that most of the students, if you are trying to think कि सर आपकी क्या expectation है, तो मेरी expectation है कि all of the students should get through campus recruitment itself. मतलब आपका campus में रहते ही कहीं ना कहीं आपको job मिल जाना चाहिए. Okay, so that is where we want to prepare you. Then to counsel the students to improve their career exposure across the industry. बहुत लोगों को क्या है पता है क्या? अभी मैं बताता हूँ कि अभी जैसे फॉर एग्जांपल आपने 12वीं के बाद भी अगर इंजीनियरिंग चूज किया होगा, और इंजीनियरिंग में अगर आपने पर्टिकुलर ब्रांच चूज किया होगा, तो आपने कभी ये एनालिसिस नहीं किया होगा कि ये ब्रांच में हम क्या सीखने वाले हैं, ये ब्रांच का फ्यूचर क्या है, ये ब्रांच में हम लोग आगे जाके क्या करने वाले. मोस्ट ऑफ द टाइम यू डोंट एनालाइज दीज थिंग्स. ओके, क्योंकि आपको करियर एक्सपोजर नहीं है. ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, आई विल कंटिन्यू बैक. Excuse me, sorry for the interruption. I'll continue with again. I think my presentation is already there. Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, somewhere I was talking about कि we want to counsel you. क्या होता है पता है क्या? जैसे मैंने आपको बताया कि 12th के बाद आपको क्या करना है, ये सुनी सुनाई बातों पे हम लोग डिपेंड करते हैं, बट एग्जैक्टली वी डोंट नो कि व्हाट वी वांट टू डू. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि इफ यू वांट टू वर्क इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग लेटर, यहां से आगे निकल के आपको एरोस्पेस इंजीनियरिंग में काम करना है, यू वांट टू मेक योर करियर इन नासा, यू वांट टू मेक योर करियर इन इसरो, यू वांट टू मेक योर करियर इन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, you want to make your career in National Aeronautics Limited, you want to make your career in Bharat Heavy Electrical Limited, you want to make a career in Bharat Electronics Limited, you want to make career in so many things. Somebody want to work in Jindal, one of the biggest steel company that we are having. Tata Steel is there. We don't know what kind of opportunities are available, and then for those opportunities, what are the things that we should prepare? Somewhere we are missing with this. So the main important thing that we want to counsel you people is that what kind of opportunities are available, and for those opportunities, what kind of
प्रिपरेशन यू नीड टू डू. आई होप दैट आई एम वेरी क्लियर विद दिस कि आपको क्या अपॉर्चुनिटीज मिलने वाले और आप क्या प्रिपेयर करने वाले हो. ठीक है ना. ये सारी चीजें हम आप लोगों को एसडीसीसी सेल के थ्रू बताने वाले. मतलब कैसा है, अंधेरे में तीर नहीं मारना है. मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूं कि अंधेरे में तीर नहीं मारना है. तीर मारना है तो मछली की आंख पे मारना है. मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनो. तीर हमें अंधेरे में नहीं मारना है, तीर हमें सिर्फ मछली की आंख में मारना है. मतलब क्या है कि योर टारगेट शुड बी सेट बिफोर यू टेक योर बो एंड एरो इन योर हैंड. कहीं ना कहीं आपका टारगेट सेट होना चाहिए. ठीक है ना. विदाउट टारगेट इफ यू स्टार्ट वर्किंग देन कहीं ना कहीं आपको लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. जो जॉब मिल गया सर यही बहुत है मेरे लिए, उसके हिसाब से. और ये ध्यान में रखो कि जैसे आपको जॉब मिलता है उसके हिसाब से आपका पूरा लाइफ चेंज होता है आगे का. The whole life depends upon the kind of job that you are having in your hand. Everything depends on the kind of job you have got. Interest is also very important. In that way कि आपके इंटरेस्ट के लिए कौन से अच्छा जॉब है वो हमें देखना है और उसके हिसाब से हम लोग बात करेंगे. Right? If everybody is having the clarity, whatever we have done or whatever I have taught till now or whatever we have discussed till now, then please put it in the chat box, sir. We have understood, or yes, sir. If somebody has not understood what I am saying, then say no, sir. Quickly in the chat box. Can you repeat the question? Okay, that's great. That's great. Most of you are replying with yes, then I think I am on the right track and you people are understanding what I am saying. Okay. Now I'll discuss with the schedule that you people will have. This is the most important thing that you should understand. I'll just focus it so that you people can see it very clearly. I'll go from first year to final year, and but the only thing is that try to just understand what are the things that I'm going to give it to you. Is the screen visible now totally? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes. Can you see first Yes, semester sir. here, and then can you see the first column? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. Okay. So see here, in the very first semester, what we are planning is that we are planning to focus purely from this SDCC cell. What I'm saying, आपके जो classes चल रहे हो तो regular चलेंगे, but we want to enhance your communication skills in this very first semester. पहले semester में सबसे important जो है वो है कि हम आपका communication skill enhance करने की कोशिश करेंगे. ठीक है ना? Okay. This presentation is more clear, I think. So in the very first semester, we are planning that we will enhance your communication skill. We'll be working on your communication skill. Then what is the second thing that we want to give it to you? The second thing is we want to aware you about the CoCube assessment and hiring. Now what is CoCube? इसका हम अवेयरनेस आपको डिटेल में देंगे बाद में, बट मैं आपको जस्ट एक छोटे से एक लाइन में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि CoCube क्या है. मोस्ट ऑफ द कंपनीज अगर आप देखोगे जितने बड़े बड़े कंपनीज हैं, इंक्लूडिंग टाटा, इंक्लूडिंग टीसीएस, इंक्लूडिंग एमएनसीज लाइक एसेंचर, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, देन देयर आर सो मेनी कंपनीज. ओके, व्हाट दीस पीपल डू इज दैट कि वो हमेशा खुद से होके हायर नहीं करते लोगों को, वो एक थर्ड पार्टी लेते हैं बीच में. व्हाट दे डू इज दैट दे ट्राई टू टेक अ थर्ड पार्टी इन बिटवीन. वो क्या करते हैं, थर्ड पार्टी लेते हैं बीच में, और वो जो थर्ड पार्टी है उसको बोलते हैं कि आप टेस्ट प्रिपेयर करो, आप बच्चों को हायर करो और हमारे पास लाके उनको छोड़ दो, एंड दे पे फॉर दैट. रिमेंबर दैट. सो दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज थर्ड पार्टी हायरिंग एंड असेसमेंट. देन व्हाट इज CoCube? There are actually three main agencies who are working for this. The very first agency is CoCube, the second agency is AMCAT, and the third agency is Litmus. ये तीन कंपनीज ऐसा मान के चलो. इन कंपनी का काम क्या है कि अच्छे बच्चे रिक्रूट करे और वो कंपनी को हैंड ओवर करे. इज इट क्लियर कि मैं अच्छे बच्चे रिक्रूट करूं और मैं कंपनी को हैंड ओवर कर दूं? तो ये CoCube हमारे पास आती है. हम लोगों ने इनके साथ MOU किया है. व्हाट डू यू मीन बाय MOU? MOU इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. मींस हम दोनों के बीच में, सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट एंड ये CoCube जो कंपनी है, इन दोनों के बीच में एक सामंजस्य करार बोलते हैं ना जिसको हम लोग मराठी में या हिंदी में, ऐसा हम लोगों ने एक बॉन्डिंग करके लिया है कि वो आएंगे हमारे पास, वो आप लोगों के लिए टेस्ट करेंगे और आपके टेस्ट में क्या क्या कम है वो हमको बताएंगे.
फिर हम लोग वो हमारी ट्रेनिंग में इनकॉर्पोरेट करके लेंगे और फिर आपको ऐसा करेंगे कि फाइनल ईयर आने तक आप वो सारी जो भी आपकी कमियां हैं वो पूरी हो जाए, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई आई हैव शोन दैट, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे जो ग्रीन कलर में है कि थर्ड पार्टी असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन फॉर द कोक्यूब्स विल बी फ्रॉम योर फर्स्ट सेमेस्टर टिल लास्ट सेमेस्टर। अब आप बोलोगे सर ये लास्ट सेमेस्टर तक ही है, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बच्चे, मैं नहीं बोल रहा कि सब लोग रह जाएंगे, अनफॉर्चुनेटली अगर कुछ बच्चे रह गए कि फाइनल ईयर तक उनका प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो भी कोक्यूब जो टेस्ट लेती है वो अपनी तरफ से आपके फाइनल ईयर के बाद वो, या फाइनल ईयर में भी या आपके थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में भी अगर आप अच्छे रहे तो वो खुद से कुछ कंपनी को आपके स्कोर्स भेजती है, एंड वो स्कोर्स कंपनी देखने के बाद आपको डायरेक्टली इंटरव्यूज के लिए बुलाती है। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? कि पहला पड़ाव आपका कोक्यूब के थ्रू भी हो सकता है कि इफ यू टेक पार्ट इन दिस कोक्यूब देन those companies can directly hire you because they believe on कोक्यूब, क्योंकि कोक्यूब जब भी करता है तो बहुत ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है, ठीक है। सो दिस इज योर फर्स्ट सेम। नाउ कैन यू सी फर्स्ट सेम वेकेशन ऑन द स्क्रीन? फर्स्ट सेम वेकेशन, Yes, sir. okay. So Yes, sir. here we will be dealing with you with your psychometric test. अब साइकोमेट्रिक टेस्ट का मतलब जो हमारे जनरल में बोला जाता है कि साइको है लड़का, वैसा नहीं है। साइकोमेट्रिक टेस्ट का ये मतलब है कि वी वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर। बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोगों को कोई समझ ही नहीं पाता है कि व्हाट डू यू वांट, व्हाट यू आर हैविंग इन योर माइंड, ओके, व्हाट इज योर बिहेवियर पैटर्न, हाउ यू बिहेव। सो ये सारी चीजों का हम आपके ऊपर एक छोटा सा टेस्ट लेंगे, एंड देन डिपेंडिंग अपॉन दैट टेस्ट इफ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड योर कैरेक्टर एंड योर ट्रेट्स। अब यहां पे हमें अच्छा ही बनना ऐसा नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। हर कोई अच्छा ही रहता है ऐसा नहीं है, ये भी ध्यान में रखो। ऐसा मत बोल देना कि सर मैं तो बहुत अच्छा पढ़ता हूं लेकिन आपने मेरे कैरेक्टर को बोल दिया कि सर आप अच्छे नहीं हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मोदी भी काम करता है तो लोग बोलने वाले हैं ही। सो डोंट वरी अबाउट दैट, दिस इज जस्ट अ टेस्ट वेयर वी वांट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट डू यू फील, व्हाट डू यू थिंक। सो दैट्स व्हाई द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स and their characters and their traits. So this is what we want to have through this psychometric test, and once we understand this, तो ये हमारा पूरा वेकेशन हम लोग यही करने वाले कि आप लोगों को अलग अलग क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे, पैटर्न दिए जाएंगे, फिर हम आप लोगों को समझने की कोशिश करेंगे, हम लोग आपसे बात करेंगे, एंड देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली यू आर एंड व्हाट थिंग्स दैट यू हैव गॉट, सो दैट वी कैन मेक यू पीपल टू गो अहेड विद दैट। इज इट क्लियर? ओके, फाइन। Can you see second semester on your screen? Yes, sir. Okay. So in the second semester, regular, देखो यहाँ पे हो गया फर्स्ट सेम रेगुलर, फर्स्ट सेम वेकेशन। अब सेकेंड सेम रेगुलर में what we are planning is that we are planning for your professional communication. Try to understand that. Professional communication मतलब पहले हमने communication skill सीखा, दूसरा प्रोफेशनली हमें कैसे बात करना है, हमें कैसे रहना है। कम्युनिकेशन का मतलब इंग्लिश नहीं है, ये भी ध्यान में रखो, वो हम बाद में बताएंगे आपको कि एग्जैक्टली कम्युनिकेशन मीन का मतलब क्या होता है। बट क्योंकि दुनिया जो काम करती है वो इंग्लिश पे काम करती है, इसलिए हमें इंग्लिश को कम्युनिकेशन का माध्यम बनाना है, ठीक है। इफ यू वांट टू कम्युनिकेट योरसेल्फ विद समबडी एल्स, देन इंग्लिश इज द लैंग्वेज व्हिच यू शुड यूज व्हेन यू आर टॉकिंग विद एनी ऑफ द अननोन पर्सन। ये इसका मतलब ये नहीं कि सर कोई अगर मराठी जानता है उसको कोई और लैंग्वेज नहीं आती तो मैं उसको इंग्लिश में बात कर रहा हूं, देन योर कम्युनिकेशन फेल्स एक्चुअली। Don't think in this way. But if a person who only knows English or who knows some other language, for example, कोई जर्मनी का क्लाइंट है आपके पास, अब आप इन्फोसिस में काम करोगे, टाटा सी मतलब टाटा में काम करोगे, टाटा मोटर्स में काम करोगे, तो टाटा मोटर्स में अगर आप काम करोगे तो देन यू आर सपोज टू डील विद जर्मन टेक्नोलॉजीज, यू आर सपोज टू डील विद जापानीज टेक्नोलॉजीज। अगर आप इन्फोसिस में काम कर रहे हो, अगर आप टेक महिंद्रा में काम कर रहे हो, या फिर अगर आप एसेंचर में काम कर रहे हो, देन यू आर सपोज टू डील विद यूएस क्लाइंट्स, okay, European clients, Australian clients. Then at that time it is necessary that you should know English, okay, because we can't talk German language there and they can't talk English language here. So then the Hindi language or Marathi language, then we should understand कि बाबा यहाँ पे हमें global language use करना पड़ेगा, जो कि अभी हमारे लिए फिलहाल English है, ठीक है। Now after this again we will work on your improving characters and your traits, and then यहां पे हम चाहते हैं कि आप कुछ करो। अभी तक हम कुछ कर रहे थे और सेकंड सेम के वेकेशन में हम लोग चाहेंगे कि आप कुछ करो। अब आप क्या करोगे? आप हमें सिर्फ कहानी सुनाओ। क्या सुनाना है आपको? कहानी सुनाओ, और हम आपको सिंपल पजल्स देंगे जिससे आपका लॉजिक डेवलप होगा और आप वो पजल सॉल्व करो। वी आर एक्सपेक्टिंग दैट इन द सेकंड सेम वेकेशन you should
टेल अस स्टोरीज। दुनिया में जो सबसे अच्छा कहानी बताना जानता है वो दुनिया में सबसे आगे बढ़ता है। ध्यान में रखो, द पीपल हु नो हाउ टू टेल अ स्टोरी दे ऑलवेज मूव अहेड। ठीक है, क्योंकि स्टोरी एक ऐसी चीज है, अगर आप पढ़ भी रहे हो ना, अगर मैं आपको टेक्निकल चीज भी बताऊं ना, मैं आपको एक्सेल शीट दिखा रहा हूं, लेकिन मैं एक्सेल शीट में हमेशा आपको कुछ इमेजिन कराने की कोशिश करता हूं। स्टोरी टेलिंग, समवेयर यू शुड टॉक, कि सामने वाले को स्टोरी लगनी चाहिए, देन ही विल गेट इन्वॉल्व विद यू व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग विद समबडी एल्स। ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर प्लानिंग इन योर सेकंड सेम वेकेशन। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट सेकेंड ईयर। नाउ वी आर एंटरिंग इनटू सेकेंड ईयर, जब आप अपने अपने डिपार्टमेंट में जाओगे। Okay, somebody might be from mechanical, CSE, ENDC, electrical, and then civil. You might be from different branches, but once you enter into your branches, then what we are planning? Okay, then in your branches, we are planning that you should be able to present technical and non-technical topics in third sem. Okay, third sem means second year ka first semester, where you should be able to present your technical and non-technical topic. आप सिर्फ presentations दो, आप PowerPoint लो, उसमें अपना छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाओ और आप हमारे सामने आओ और आप हमें प्रेजेंट करो। ठीक है, एंड देन द सेकेंड थिंग दैट वी आर एक्सपेक्टिंग इज द डे टू डे कम्युनिकेशन। नाउ व्हाट इज डे टू डे कम्युनिकेशन? डे टू डे कम्युनिकेशन इज जो हम लोग डेली यूज करते हैं। सी, इंग्लिश इज डिफरेंट एंड आई एम टॉकिंग अबाउट डे टू डे कम्युनिकेशन इज डिफरेंट। वंस आई टॉक अबाउट इंग्लिश, then I should have a very high level English where even I can understand the poem at the very first time when I read it. I should be able to understand any of the novel when I am reading it. But उस वक्त क्या होता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसके वर्ड के मीनिंग ही मालूम नहीं होते आपको। हमें वो नहीं करना है यहाँ पे। हमें यहाँ पे क्या करना है? सर, आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, सर आई वॉन्ट टू टेक लीव, कैन आई लीव सर, कैन आई सिट हियर सर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ये कम्युनिकेशन जो आपको डे टू डे में लगता है। जब आप अपने फ्रेंड से बात करते हो तो कैसे बात करोगे, जब आप अपने टीचर से बात कर रहे हो तो कैसे बात करोगे, और उसमें क्या बात करोगे, उसको इंग्लिश में, सिंपल इंग्लिश में कैसे बोलना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपसे पूछूं, मैं बैठा, मैं बैठूंगा और मैं बैठ रहा हूं, देखो तीन चीजें, सेम थिंग। मैं बैठा, मैं बैठ रहा हूं और मैं बैठूंगा, तो आप इसको कैसे बोलोगे? ठीक है ना, ये सारी चीजें, ऐसी चीजें, आप चल रहे हो, आप चलोगे, मैं चलूंगा, ये इसको कैसे आपको, जैसे आप मराठी और हिंदी में बहुत इजीली बोल पाते हो ना, तो ऐसे सारे कम्युनिकेशन हम आपको सिखाएंगे। कब? सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट सेम में। देन यहां पे हमने अवेयरनेस क्यों लिखा है? क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में आपके साथ कुछ डायरेक्ट सेकेंड ईयर के बच्चे ज्वाइन होते हैं। डायरेक्ट सेकेंड ईयर के बच्चे, जैसे आप 12th के ऊपर आते हो वैसे डिप्लोमा के ऊपर जो बच्चे आते हैं, तो ये अवेयरनेस उनके लिए रहेगा। हम आपको ऑलरेडी अवेयरनेस दे चुके हैं, बट ये अवेयरनेस उनके लिए रहेगा। नाउ व्हाट नेक्स्ट? Now in the third semester, what we are expecting from you people is that कि आप इसके साथ देखो, मैं यहां पे हूं अभी, ठीक है ना, मेरा कर्सर जहां पे है वहां पे आप कॉन्सेंट्रेट करो। आप इसके साथ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल क्लब्स बनाओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोई भी इंजीनियर के लिए, सिर्फ इंजीनियर के लिए नहीं, कोई भी स्टूडेंट के लिए, चाहे वो मेडिकल का रहे, चाहे वो इंजीनियरिंग का रहे, चाहे वो आर्ट्स का रहे, चाहे वो कॉमर्स का रहे, या कहीं का भी रहे, कि यू शुड हैव योर ओन क्लब्स। क्लब्स का मतलब ग्रुप नहीं है कि सर मेरे 4 दोस्त हैं और मैंने ग्रुप बना दिया तो मेरा एक क्लब बन गया, नहीं, वैसे क्लब्स को हम लोग यहाँ पे ऑफिशियली अलाउ नहीं करेंगे। अब क्लब्स कौन से बनेंगे? क्लब्स बहुत सारे बन सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे जिनको ऐसा लगता है कि सर फिजिक्स मेरे लिए बहुत अच्छा है, मुझे बहुत फिजिक्स अच्छा लगता है, तो देन यू कैन मेक अ फिजिक्स क्लब। कुछ बच्चे ऐसे होंगे, सर मुझे ड्रामा बहुत अच्छा लगता है, देन यू कैन गो फॉर ड्रामा क्लब्स। कुछ बच्चे बोलेंगे सर मुझे वीडियोग्राफी और फोटो निकालने में बहुत अच्छा लगता है, फोटोग्राफी में मैं मतलब अच्छा लगता है, देन यू कैन एस्टैब्लिश वीडियो एंड फोटोग्राफी क्लब। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? देन कुछ बच्चे आएंगे, सर मुझे मैथ्स में बहुत अच्छा लगता है, मुझे मैथ्स में बहुत अच्छा लगता है, देन यू कैन हैव योर मैथमेटिकल क्लब। कुछ बच्चे आएंगे, नहीं सर मुझे जर्नलिज्म बहुत अच्छा लगता है, मुझे इंजीनियरिंग के साथ थोड़ा बहुत जर्नलिज्म भी समझना है, देन डेफिनेटली यू कैन हैव योर ओन जर्नलिज्म क्लब, जहां पे हम लोग ऑलरेडी वी आर हैविंग आवर न्यूज लेटर्स। ध्यान में रखो कि हमारे न्यूज लेटर्स हर 2 या 3 महीने में पब्लिश होते हैं, जहां पे हम पूरे कॉलेज का डेटा, कॉलेज में क्या क्या हुआ है, कौन क्या कर रहा है, उनका इंटरव्यू लेना, बाकी सारी चीजें करते हैं और हम उसको प्रेजेंट करते हैं, उसका ओपनिंग होता है और वो सब बच्चों में बांटा जाता है। यू कैन हैव योर ओन FM क्लब्स ऑल्सो। FM क्लब का मतलब क्या है कि आप अपना एक रेडियो बनाओ, रेडियो सेंटर बनाओ, आपका अपना खुद का एक FM क्लब बनाओ, और आप जो भी कॉलेज में जो भी अनाउंसमेंट है, डे टू डे लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, वो आप वहां पे यूज करो। ठीक है?
These are what I am talking about कि आप लोगों को बहुत सारे एक्टिविटीज करने हैं, खुद के क्लब्स बनाने हैं. कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर मुझे स्पोर्ट्स क्लब बनाना है, मुझे फुटबॉल का क्लब चाहिए, मुझे फुटबॉल खेलने में मजा आता है. तो देन मेक योर ओन क्लब. यहाँ पे आपको कन्विंस करना है बच्चों को, हम नहीं कन्विंस करने वाले. ऐसा मत बोल देना हिपर की सर आप सर बच्चे बुला के रहो मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूँ. नहीं, दिस इज योर स्किल कि आप फुटबॉल कितना अच्छा है, कितना अच्छा खेल सकते हो, ये सब आप लोगों को बताना है. दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल क्लब्स बनाने हैं आपको. एवरीबडी इज विद मी, एवरीबडी इज विद मी. यहां तक सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, that's great. Yes, sir. Bogde is asking sir acting club. See, I'm not. मैंने यहाँ पे कुछ क्लब्स के नाम लिए. आप अच्छे क्लब्स लेके आओ हमारे पास, हम उसको सैंक्शन करेंगे, फिर आप उसमें अपने स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करके लो. How that I have answered? Right? तो वी आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग. यहाँ पे हम ये नहीं चाहते कि हमारा बच्चा सिर्फ एक ही लेवल पे ग्रूम हो. नहीं, ऐसा हमें कभी नहीं चाहिए. हमें चाहिए कि हमारा बच्चा हर लेवल पे ग्रूम हो. ओके, हर लेवल पे उसका ग्रूमिंग होना चाहिए. ऑलराउंडर बनना चाहिए हमारा स्टूडेंट. हमारा स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक जगह पे गया, किसी एक जगह से वैसे ही रह गया. सर मैं ऐसे ही रहने वाला हूँ, सर मैं वैसे ही रहने वाला हूँ, वैसा नहीं है. ठीक है? ओके, सर कॉलेज में क्लब वाइज कंपटीशन भी रहते हैं. रहेंगे ना, बिल्कुल रहेंगे ना. मैं वही अभी धीरे धीरे जा रहा हूँ आगे. Sir, you are not audible. Sir, you are not audible. जस्ट अ सेकेंड, गिव मी जस्ट अ सेकेंड. मैं अभी रुका नहीं हूं, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं वापस से. जस्ट अ सेकेंड. नाउ द स्क्रीन इज विजिबल. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, that's great. Fine. Now what you are going to do, or sorry, what we are going to do in your third semester vacation. मतलब सेकेंड ईयर के वेकेशन में आप क्या करने वाले हो? सेकेंड ईयर के फर्स्ट वेकेशन में हम लोग आपको अवेयरनेस देंगे. जैसे मैंने आपको बोला ना कि आपको अवेयरनेस नहीं है कि कौन सी कंपनी क्या करती है, कौन से इसमें हमको क्या करना है, आगे जाके काम करना है. तो हम आपको यहाँ पे आपके करियर के जो लाइक आफ्टर इंजीनियरिंग व्हाट ऑल यू कैन डू, वो सारी चीजें हम आपको बताने वाले. फॉर एग्जांपल जो सबसे मोटो बहुत सारे लोगों का रहता है, दैट इज अवेयरनेस ऑन कैंपस प्लेसमेंट एक्टिविटीज एंड व्हाट काइंड ऑफ कंपनीज आर कमिंग, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी शुड प्रिपेयर एंड व्हाट काइंड ऑफ जॉब रोल्स दैट वी आर गोइंग टू गेट वंस वी एंटर इनटू द कंपनी. तो वो हम लोग आपको देंगे अवेयरनेस. हम लोग यहाँ पे, और ये सबको बैठना है. भले ही मेरे को इंटरेस्ट है सर मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ, बट फिर भी आप बैठो. आप हर चीज का फ्लेवर लो. नहीं कि हम लोग बोलते हैं कि पहले हम लोग क्या करते हैं, आज मैं आइसक्रीम खाने गया तो मैंने आज से पहले कोई आइसक्रीम नहीं खाया, तो मैं डायरेक्टली जाके स्ट्रॉबेरी मांग सकता हूँ क्या? और कैन यू बी सो श्योर कि स्ट्रॉबेरी सर सबसे टेस्टी आइसक्रीम होगी? नहीं ना. तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले हर चीज का सैंपल टेस्ट लेना पड़ेगा. उसके बाद आप अपना एक फेवरेट बनाते हो. नहीं सर वेनिला इज माय फेवरेट आइसक्रीम, किसी का स्ट्रॉबेरी हो सकता है. इसका मतलब ये नहीं कि वेनिला अच्छा नहीं है और स्ट्रॉबेरी अच्छा है. एवरी आइसक्रीम इज गुड एट इट्स ओन प्लेस, बट सम पीपल लाइक दिस आइसक्रीम एंड सम पीपल लाइक दैट आइसक्रीम. सिमिलरली every company, every branch, every activity, every job is good at its place, but somebody like to do this kind of job, somebody like to do that kind of job. तो इसके लिए हम आपको वहां पे अवेयरनेस देंगे. तो इसलिए सबको बैठना है. देन अगेन एट द सेकंड स्टेज वी आर गोइंग टू गिव यू अबाउट अवेयरनेस अबाउट द गेट एग्जामिनेशंस. जैसे अभी आप लोगों ने IIT JEE का एग्जामिनेशन दिया था ना, वैसे गेट एग्जामिनेशन होता है. और गेट एग्जामिनेशन के बहुत सारे फायदे, ये सिर्फ आपको हायर स्टडीज के लिए ही नहीं बट बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज ओपन करके देता है. तो वो अवेयरनेस हम आपको थर्ड सेम के वेकेशन में देंगे. देन वी आर आल्सो प्लानिंग टू अवेयर यू ऑन योर MS इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज. वी विल अरेंज सेमिनार्स फॉर GRE और TOEFL एग्जामिनेशन और फॉरेन लैंग्वेजेस. क्योंकि कैसा है कि अगर सपोज मुझे सर यूरोप में जाना है, जर्मनी में जाना है, देन जर्मनी पीपल एक्सपेक्ट दैट यू शुड नो जर्मन लैंग्वेज बिफोर कमिंग देयर, और यू शुड एटलीस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज जर्मन लैंग्वेज. If you want to go to Japan, then Japanese people expect that you should know Japanese language because Japanese people are not very good in English. German people are not very good in English. ठीक है ना. तो अगर आपको जर्मनी में जाके काम करना है या जर्मनी में जाके आपको पढ़ाई करना है, MS करना है, then you should know some of the foreign languages. So इसलिए हम लोग उसका भी अवेयरनेस देंगे. But we are not going to teach you foreign languages. Try to understand that. We will just give you the awareness कि किस जगह पे क्या लगता है, और उसके लिए हम आपको एजेंसीज ढूंढ के दे सकते हैं और आप उन एजेंसीज के साथ कनेक्ट हो सकते हो. वो एजेंसीज आपको अलग अलग लैंग्वेज पढ़ाएंगे. ठीक है. बट ध्यान में रखो कि वी आर जस्ट प्लानिंग टू गिव यू द फ्लेवर कि ये चीज है तो आपको कैसा करना है. बट अवेयरनेस अबाउट प्लेसमेंट देने का, प्लेसमेंट हम आपको देंगे बिकॉज 70 to 80% पीपल ऑप्ट फॉर दिस. देन गेट एग्जामिनेशन भी आपके कंडक्ट होंगे, लेकिन वो डिपार्टमेंट वाइज होंगे क्योंकि वो डिपार्टमेंटल सब्जेक्ट्स रहते हैं.
ठीक है। उसके बाद हम आपको एक और अवेयरनेस देंगे, दैट इज अवेयरनेस ऑन कैट एंड जीमैट। मींस आफ्टर इंजीनियरिंग बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि हमें एमबीए करना चाहिए, समझ में आया कि नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, तो हम लोग उसका भी अवेयरनेस देंगे। और आप इंजीनियरिंग करके अगर एमबीए करते तो आपको क्या फायदा होगा वो भी हम आपको बताएंगे। देन देयर आर सम पीपल, वो लोग बोलते हैं नहीं सर हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, द वेरी सेफ एंड साउंड जॉब, दुनिया का सबसे सेफ एंड साउंड जॉब कौन सा है, गवर्नमेंट जॉब है। सो इवन वी विल गिव यू द अवेयरनेस ऑन, मतलब ये सेमिनार होगा आप लोगों के लिए जहां पे आपको पूरा यूपीएससी का डिटेल बताया जाएगा, एमपीएससी का डिटेल बताया जाएगा, और गवर्नमेंट जॉब्स कैसे और कौन से टाइप के गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल है आपके स्पेसिफिक ब्रांच के लिए, वो सब आपको बताया जाएगा। ठीक है, ये सब अवेयरनेस हम लोग जब आपको देंगे, उसके बाद वी आर एक्सपेक्टिंग दैट नो योरसेल्फ एंड सेट योर गोल। देखो हम कहां पे सेट कर रहे हैं, सेकेंड सेम के वेकेशन में ब्रांच में एंटर करने के बाद वी आर सेटिंग द गोल कि नो योरसेल्फ एंड सेट योर गोल। मैं क्या हूं, क्योंकि हमने ऑलरेडी साइकोमेट्रिक टेस्ट लिया है, हमने आपको ऑलरेडी ग्रूम किया है, और उसके बाद हम आपको बोलते हैं कि अब आप अपने आप को पहचानो कि मैं किसके काबिल हूं, मेरा इंटरेस्ट कौन सा है, मेरे लाइफ के एम्बिशंस क्या है, मेरे घर वालों के एम्बिशंस क्या है, मुझे कहां कहां तक मैं क्या क्या कर सकता हूं, ये सारी चीजें आपको एनालिसिस करनी है, और उसके बाद आपको अपना गोल सेट करना है, राइट। सो दिस इज हाउ वी आर प्लानिंग। उसके बाद अगेन वी विल गो फॉर डे टू डे कम्युनिकेशंस, अगेन डे टू डे कम्युनिकेशंस होगा, और ये डे टू डे कम्युनिकेशन में हम अभी आप लोगों को यूज ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस बताएंगे, ठीक है ना, करेक्ट ग्रामर बताएंगे, और वोकेबलरी के बारे में हम आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है। व्हाई वी आर वर्किंग सो मच ऑन कम्युनिकेशन, बिकॉज नाउ 90% ऑफ योर सिलेक्शन इज डिपेंडेंट ऑन योर कम्युनिकेशन इन एनी ऑफ द फील्ड, मे बी फॉर हायर स्टडीज, मे बी फॉर जॉब, मे बी फॉर गवर्नमेंट जॉब, maybe for public speaking, maybe for anything, but this is very important, so that's why we are more concentrating on this। और इसके साथ आपका वैकेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे एप्टीट्यूड ट्रेनिंग, द वेरी फर्स्ट स्टेज ऑफ एनी ऑफ द एक्टिविटी, चाहे आप गेट कर रहे हो, चाहे आप कैट कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी कर रहे हो, चाहे आप जॉब के लिए जा रहे हो, चाहे आप हायर स्टडीज के लिए जा रहे हो फॉरेन में, ये सबको होना कंपलसरी है। दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग विच इज कॉमन फॉर एवरीबडी, समझ में आ रहा है, कॉमन थिंग विच इज कॉमन फॉर एवरीबडी। एप्टीट्यूड ट्रेनिंग, एप्टीट्यूड ट्रेनिंग में हम आपका एप्टीट्यूड बढ़ाते हैं, मतलब क्या, यहाँ पे मैथमेटिकल न्यूमेरिकल्स होते हैं, लॉजिकल थिंकिंग रहता है, रीजनिंग रहता है, और उसके हिसाब से आपको हम क्वेश्चंस देंगे, मतलब पहले हम आपको ट्रेन करेंगे, उसके बाद हम आपके टेस्ट लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे नीचे लिखा है कि मॉक एप्टीट्यूड टेस्ट विल बी कंडक्टेड वीकली, हर हफ्ते आपका एक मॉक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जो चैप्टर हम पढ़ाएंगे, जितना भी हम पढ़ाएंगे एक वीक में, उस वीक के ऊपर इमीडिएटली आपका टेस्ट होगा, फिर आपको समझ में आएगा कि इसमें मुझे क्या समझ में आया एंड क्या समझ में नहीं आया, एंड देन यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग अकॉर्डिंग टू दैट, ओके। एप्टीट्यूड ट्रेनिंग में अगर मैं आपको बता दूं कि 10 तक का जो भी आपने मैथमेटिक्स किया है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद आपका डे टाइम वर्क, ठीक है ना, इतने घंटे में एक आदमी इतना काम कर सकता है, तो दो आदमी मिलकर इतना काम कितने घंटे में करेंगे, या फिर दो बोट ऐसे आमने सामने से आ रहे हैं जो इतनी इतनी स्पीड से आ रहे हैं, तो कब मिलेंगे, या एक बोट आगे भाग रहा है, एक बोट पीछे जा रहा है, ट्रेन आगे भाग रहा है, ट्रेन पीछे जा रहा है, वो ट्रेन ये ट्रेन को कब पकड़ पाएगी, इस टाइप के जो क्वेश्चंस रहते हैं, जिसको आपको 10 तक का इंफॉर्मेशन चाहिए। मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूं कि 10 तक का ही मैथमेटिक्स चाहिए उसको, देखो कितना ईजी है, यू नीड ओनली द मैथमेटिक्स ऑफ अप टिल 10th स्टैंडर्ड ओनली, नो 11th, नो 12th, नो इंजीनियरिंग, इतना इजी रहता है, और हमारे बच्चे सबसे ज्यादा इसमें ही फेल होते हैं, इसलिए हम लोगों ने उसको सेकेंड ईयर से स्टार्ट किया, ठीक है। देन what you are going to do in 4th sem, ठीक है ना, 3rd sem का वेकेशन हो गया, अब 4th sem में यही आपका एप्टीट्यूड ट्रेनिंग रिगरसली कंटिन्यूड होगा, मतलब हम आपको वीकली 2 hours सेशन होगा जो स्पेशली एप्टीट्यूड ट्रेनिंग के लिए होगा। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि जब मैं रेगुलर की बात कर रहा हूं तब आपका 2 घंटे का सेशन होगा, जब मैं वेकेशन की बात कर रहा हूं तब आपका 2 to 3 वीक्स का सेशन होगा, 2 to 3 वीक्स बोल रहा हूं मैं, मतलब 15 से 20 दिन का सेशन होगा, जिसमें आपको 3 से 4 घंटे हम लोग आपको ट्रेनिंग देंगे, ठीक है। 4th sem में हम आपको और क्या मतलब बताने वाले हैं, वी विल टेल यू हाउ टू मैनेज योर टाइम्स एंड व्हाट आर द प्रोफेशनल एथिक्स, ओके। प्रोफेशनल, देखो जहां पे हम इंडस्ट्री की बात कर रहे थे पहले, याद है हमारा एम, तो हम लोग यहाँ पे आपको प्रोफेशनल एथिक्स बताएंगे। प्रोफेशनल एथिक्स मतलब क्या है कि जैसे मैं घर में बात कर रहा हूँ वैसे, देखो मैं घर में मेरे पिताजी से बात करता हूँ तो इज्जत देके बात करता हूँ, तो मैं मेरे बॉस से बात करूंगा तो वैसे बात करूंगा तो चलेगा क्या, भले मैं दोनों को इज्जत ही दे रहा हूं, दोनों को मैं रिस्पेक्ट दे रहा हूं, बट मैं जैसे मेरे घर पे पिताजी से बात करता हूं वैसे ही मैं मेरे बॉस से बात कर सकता हूं क्या? क्विकली रिप्लाई यस और नो। No. No, sir.
No. No. No, sir. No, sir. No, sir. वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या है कि जब मैं बॉस से बात कर रहा हूं तो मेरे को कहीं ना कहीं अपने टोन में और अपने प्रोफेशनल मतलब मेरे अटायर में, मेरे बॉडी लैंग्वेज में बहुत सारी चेंजेस करनी पड़ेंगी। सो दैट इज वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल एथिक्स। ठीक है। देन अगेन डे टू डे कम्युनिकेशन विल कंटिन्यू, बट हियर वी विल बी मोर वर्किंग ऑन योर वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का मतलब है कि यू शुड नो मोर एंड मोर वर्ड्स। ठीक है ना। अभी तक हम लोग डेली मतलब डे टू डे क्या कर रहे थे, अब हम लोग स्पेसिफिक वर्ड्स पे आ रहे हैं, जहां पे हम आपके वर्ड्स, जैसे जब मुझे हिंदी में बात करना है, मराठी में बात करना है, अगर मेरा शब्दकोश समझ में आ रहा है, अगर मेरे पास वर्ड्स कम पड़ रहे हैं तो मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूं प्रॉपरली। ओके। बट अगर मेरे पास वर्ड्स है, मेरे दिमाग में 1000 वर्ड्स हैं, तो मैं कोई भी वर्ड्स को फटक से मतलब जल्दी से अपने कम्युनिकेशन में घुसा के आपको समझा सकता हूं कि बाबा मैं क्या बोलना चाहता हूं। ठीक है। सो दिस इज वेयर विल बी टॉकिंग अपॉन वोकैबुलरी, इंक्रीमेंट इन योर वोकैबुलरी। देन सेल्फ इंट्रोडक्शन, यहां पे आपको अपना खुद का सेल्फ इंट्रोडक्शन, मैं कौन हूं, क्या हूं, आपको सामने आके बोलना आना चाहिए। You should be able to introduce yourself in front of the people. Okay. Then again mock aptitude test ये कंटिन्यू रहेगा 7th सेमेस्टर तक, ध्यान में रखो। बट यहाँ पे हफ्ते की बजाय हम फोर्टनाइट में लेंगे। फोर्टनाइट का मतलब होता है 15 दिन में एक बार। Every 15 days you will be giving a mock test, aptitude test, because we don't want that you should lose your aptitude anytime. क्योंकि ये पहला स्टेप है कोई भी कंपनी में, कोई भी जॉब के लिए, कोई भी पढ़ाई के लिए, कोई भी आगे बढ़ने के लिए, ये सबसे पहला टेस्ट होता है। देन वील बी वर्किंग ऑन योर राइटिंग स्किल्स। तो उसमें हम आपको सिखाएंगे कि ऑफिशियल एप्लीकेशन कैसे लिखना है। नो डाउट दैट यू पीपल हैव लर्न दीज ऑल दीज थिंग्स इन योर 9th 8th 7th स्टैंडर्ड की एप्लीकेशन कैसे लिखना है, बट स्टिल वी हैव फाउंड दैट most of the students don't know how to write a specific particular application in English. So we will be taking 3 to 4 sessions on writing official applications, जो आपको फर्स्ट ईयर में भी होगा बट यहां पे भी होगा। ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि फाइनली हम लोग इंजीनियर्स है, ये सारी चीजें हम लोगों के लिए एडिटिव है। मतलब क्या है पता है क्या, मैं आपको बताता हूं कि SDCC क्या है और आपको क्या करना है। आप सब लोगों ने केक खाया क्या? केक, everybody has taken the cake or eaten the cake? Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। अब मुझे बताओ, जब आप केक खाते हो तो सपोज आप, अगर आप सब सोलापुर को बिलोंग करते हो तो मैं एक दुकान का नाम बताता हूँ, मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एक नाम बता रहा हूँ। आप डैनिश को गए, डैनिश, तो यस। केक जो है आपका, वो केक नॉर्मल केक रहता है क्या? सिर्फ आपने केक बनाया और छोड़ दिया? No. नहीं। No. उसके ऊपर आप क्या करते हो? डेकोरेशन करते हो कि नहीं? अब वो आप क्रीम लेके करो, वो आप चेरी लेके करो, वो आप चॉकलेट लेके करो, वो आप बिस्किट लेके करो, वो आप क्या भी लेके करो, बट यू आर डूइंग सम डेकोरेशन ओवर इट, राइट? यस। This will decorate you. Try to understand that. We are decorating you. But बेस जो है ना, केक के बिना डेकोरेशन नहीं होने वाला है। बेस जो है ना वो इंजीनियरिंग है, उसको हमें कहीं नहीं छोड़ना है। और इंजीनियरिंग मीन्स प्रैक्टिकल। इंजीनियरिंग मीन्स थ्योरी तो है, उसके साथ प्रैक्टिकल ज्यादा है। So now here we will be telling you about what exactly a project means, importance of the project, types of the project, how to choose projects, interdisciplinary projects, lab innovation क्या होता है, ये सारी चीजें हम आपको अवेयर करेंगे। ठीक है। डोंट वरी नाउ, सिर्फ ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हम क्या करने वाले हैं, वो कैसे होगा, कितना हम अवेयर करने वाले हैं, कौन से टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं, इंडस्ट्रियल होते हैं, सोशल होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, सब अभी चिंता मत करो, अभी सिर्फ देखो कि आप लोगों को क्या मिलने वाला है। ओके। एंड देन यहाँ पे जो हायर स्टडीज के बारे में बोल रहे हैं कि सर हमें हायर स्टडीज के लिए आगे बढ़ना है, तो हम आपको एजेंसीज लाके देंगे, आप वो एजेंसीज के साथ कनेक्ट हो जाओगे, तो वो क्लासेस आपके ऑनलाइन भी हो सकते हैं, ऑफलाइन भी हो सकते हैं, इवन फॉर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स वो आपके हम लोग कर सकते हैं, लेकिन यहां से लेके 7th सेमेस्टर तक होगा। और यहां से ही आपके गेट क्लासेस स्टार्ट होंगे, क्योंकि अभी आपका एक सेमेस्टर आपके खुद के ब्रांच में कंप्लीट हो चुका है। देन यू कैन नाउ अंडरस्टैंड सम ऑफ द 4 or 5 बेसिक सब्जेक्ट्स, एंड बिलीव मी कि गेट ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन सेकेंड ईयर सिलेबस, सेकेंड सेम का फर्स्ट, सेकेंड सेम का सेकेंड सिलेबस, इसके ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करता है। अगर ये 2 सेमेस्टर के सब्जेक्ट आपने पक्के कर लिए, पक्के मतलब वेयर यू कैन आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, देन डेफिनेटली यू कैन गो फास्ट, यू कैन डेफिनेटली क्रैक द गेट। तो इसलिए हम लोग यहाँ से गेट क्लासेस एंड मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे। ये डिपार्टमेंट वाइज होगा, इसके लिए हम बाहर की एजेंसीज लाएंगे नहीं लाएंगे, दैट इज नॉट clarified, because we itself want to take these classes because we are having good teachers, good engineers with us. ठीक है। ओके। नाउ अब देखो 4th सेम में हम लोग आपको क्या कर रहे हैं, अब जो बाकी के ब्रांच के, ये मत सोचना कोड्स बोलते हैं आपको सॉफ्टवेयर दिख रहा है, ये वो कोड्स नहीं है। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, स्यूडो कोड्स। स्यूडो कोड्स का मतलब होता है जहां पे प्रोग्रामिंग नहीं रहता है,
जहां पे हम कॉमन इंग्लिश में कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, आपको सिर्फ वो एनालाइज करना है कि अगर ये हुआ तो क्या होगा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा. मतलब वी आर बिल्डिंग योर लॉजिकल थिंकिंग हियर ओनली, वी आर नॉट टीचिंग यू एनीथिंग. हम लोग यहाँ पे आपको सी, जावा, ऐसा कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं सिखाने वाले. दिस इज स्यूडो कोड्स. स्यूडो कोड्स का मतलब होता है कॉमन इंग्लिश में हम आपको कुछ कंडीशंस देंगे, वो कंडीशन के हिसाब से आपको बताना है कि इसका आउटपुट क्या होगा. ठीक है. And then we will be having value added programs. VAP means value added programs, which will be of 2 to 3 weeks. And this is compulsory for each and every branch, whether you are from mechanical, whether you are from civil, whether you are from electrical, whether you are from ENTC or from CSE. These two languages, you as an engineer, each and everybody should know. C and Python. ये आपको फर्स्ट ईयर में भी होगा C. And Python is a language which is common for everybody. अब मैकेनिकल वाले बोलेंगे सर मैं पाइथन क्यों सीखूं, क्या जरूरत है मुझे पाइथन सीखने की. इलेक्ट्रिकल वाले बोलेंगे क्यों सीखूं सर. मैकेनिकल सिविल वाले बोलेंगे क्यों सीखूं सर. ये आपको इसलिए सीखना है क्योंकि आगे जाके जब भी आप काम करते हो, फॉर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं. सपोज मैं एक इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं जहां पे स्टील रॉड्स बनते. क्या बनते? स्टील रॉड्स. अब स्टील रॉड्स बनाने के वक्त मुझे उसके बहुत सारे पैरामीटर्स में काम करना पड़ता है, जैसे उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, उसका स्ट्रेंथ क्या है, उसका मुझे डायमीटर कितना लेना है, उसका मुझे क्या क्या करना है. अब ये सारी चीजें अगर मैं मैन्युअली करता रहा, मतलब मेरा दिमाग लगा के मैं मैन्युअली करता रहा, तो मेरे सारे स्टील रॉड्स हो सकता है कि जो मेरा पहला लॉट है और जो मेरा दूसरा लॉट है वो एक साइज का नहीं बने या एक जैसा नहीं बने. देन यू शुड वर्क ऑन योर कंप्यूटर्स. अभी आपने बहुत सारे मैकेनिकल इंडस्ट्रीज में देखा होगा कि लेजर कटिंग चालू हो गया. लेजर कटिंग डायरेक्टली शीट को काटने लगता है, लकड़ी को काटने लगता है वो, बट उसके पीछे जो बैठा है आदमी वो सीएनसी के ऊपर काम करता है, कंप्यूटर के ऊपर काम करता है. तो वहां पे कहीं ना कहीं आपको ये सारी लैंग्वेजेस जरूरत लगेगी, इसलिए हमने कंपलसरी किया है. देन अगेन मॉक टेस्ट विल कंटिन्यू. एंड देन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो हम आपको बताने वाले, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज आप कोई भी कंपनी में जाओ, आपका बॉस तो आपको कॉल करेगा, आपका क्लाइंट तो आपको कॉल करेगा, या कोई ना कोई सबऑर्डिनेट्स कॉल करेंगे, आपके कलीग्स आपको कॉल करेंगे. देन वी शुड ऑलवेज मेक श्योर दैट कि टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हमारा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. व्हाट इज टेलीफोनिक कन्वर्सेशन? हम लोग कैसे बात करते हैं? उठाया, हेलो कौन है. ओके, दिस इज नॉट द वे दैट वी शुड कम्युनिकेट. देयर इज अ वे दैट वी शुड कम्युनिकेट ऑन अ टेलीफोन. कौन है लगे पूछना बहुत गलत है. ओके, देयर इज अ वे दैट वी शुड कम्युनिकेट. वो हम लोग सीखेंगे कि कैसे कम्युनिकेट करना है. Then there will be brainstorming sessions where we'll be dealing with, where we will make you to sit together and we'll give you something जिसका आपको हमें आउटपुट निकाल के दिखाना है, जो आपके दिमाग को हिलाएगा वहां पे कि ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है. हम आपको ऐसी चीज देंगे जो, सपोज आपने कोई, हमने कोई चीज दी आपको, सपोज मैंने आपको 4 चीजें दी और मैंने बोला कि मुझे ऐसी एक चीज बना के दिखाओ, आपने बना दिया, तो मैं अचानक एक चीज निकाल दूंगा उसमें से, मैं आपको सिर्फ 3 चीज दूंगा. अब मैं आपको बोलूंगा कि यूज दीज 3 थिंग्स एंड मेक समथिंग. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? We will take out your resources and we want you to do the same thing. आपको उस हद पे पहुंचना पड़ेगा जब आप बोलोगे नहीं सर, इससे अगर आप कुछ मुझे कम दे रहे हो तो ये काम नहीं हो सकता है. ठीक है? These kind of brainstorming sessions will be there and then puzzles will be there. Okay? Then in the 5th sem vacation, we will be more discussing or we will be more dealing with group discussions, debates and extempore. Okay? हम लोग यहाँ पे काम करेंगे आपके जीडी के ऊपर, आपके डिबेट्स के ऊपर और आपके एक्सटेम्पोर के ऊपर. ठीक है? ये हम जब करेंगे तब मजा आएगा, तब हम देखेंगे कि क्या होगा. झगड़े होंगे, लड़ाई होगी, वो हम देखेंगे क्या होगा वहां पे. ठीक है? क्योंकि हम टॉपिक्स ही ऐसा देंगे जिसमें आप हाँ या नहीं बोल पाओगे. समझ में आ रहा है? जैसे मैं अभी आपको एक टॉपिक देता हूं, सिंपल सा एक टॉपिक देता हूं. अब उसमें झगड़े होंगे, जरूर होंगे. जैसे मेरा एक टॉपिक है कि आफ्टर मैरिज द सरनेम ऑफ गर्ल चेंजेस. ये बॉयज का क्यों नहीं चेंज होता है या गर्ल्स का ही क्यों चेंज होना चाहिए, इसके ऊपर मैंने आपको बात करने के लिए बोला है. तो नाउ एवरीबडी विल स्टार्ट फाइटिंग कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. ऑल गर्ल्स विल से सर नहीं होना चाहिए, ऑल बॉयज विल से सर नहीं होना चाहिए. देन यू विल फाइट एंड देन आई वांट यू पीपल टू कम आउट विद अ कंक्लूजन व्हिच इज गुड फॉर सोसाइटी. तो ऐसे ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक दिए जाएंगे जिसमें आप एक मत हो ही नहीं सकते, लेकिन आपको एक मत होना पड़ेगा. वेयर यू कैन नॉट बी लाइक you cannot come out with a single conclusion, but you should make sure that at the end you should give me only one single conclusion. Okay? Then again there will be VAP, but this VAP will be branch specific.
आपके ब्रांच से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल मैकेनिकल सिविल के लिए कैड का रहेगा, इलेक्ट्रिकल के लिए पीएलसी के ऊपर हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सीएससी के लिए हम लोग मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले सकते हैं, या कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पे हम लोग ये वैप ओपन रख रहे हैं। सपोज ईएनटीसी का लड़का बोलता है सर मुझे सीएससी का वैप अटेंड करना है, तो आप अटेंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चा बोलेगा नहीं सर मुझे वहां के सब्जेक्ट्स अच्छे लग रहे हैं, I want to learn something artificial intelligence, data science, machine learning, then definitely you can go. Even mechanical engineers are very well doing in AI and machine learning. आज सबसे अच्छा जो सबसे बड़ा ब्रांच है कंप्यूटर साइंस का एएनटीसी का, जो आगे जाके बढ़ेगा, उसमें सबसे अच्छा आज मैकेनिकल इंजीनियर कर रहे हैं, ये ध्यान में रखो। मोस्ट ऑफ द पीपल दोज हु आर प्लेस्ड आर फ्रॉम मैकेनिकल ब्रांच फॉर एआई एंड मशीन लर्निंग। सीएससी से भी है, इलेक्ट्रॉनिक से भी है, इलेक्ट्रिकल से भी है, मैकेनिकल से भी है, सॉरी सिविल से भी, बट मैकेनिकल के लोग ज्यादा है वहां पे। ओके, सो दैट इज वेयर आई वाज टॉकिंग अबाउट कि आपको पहले देखना पड़ेगा कि आपको कौन सी कंपनी में सिलेक्ट होना है, कौन से टाइप का आपको जॉब चाहिए, उसके हिसाब से हम लोग आपका प्रिपरेशन करवाएंगे। Then here we want that you should read comprehensions, sentence arrangement and spotting the errors. मतलब you should be able to read the comprehensions, paragraph reading आना चाहिए, sentence arrangement आपको आना चाहिए। मैं आपको कुछ भी sentence दूंगा बट आपको उसको एक कहानी बनाना है, कौन सा पहला स्टेटमेंट होना चाहिए, कौन सा दूसरा, कौन सा तीसरा, like that. And then you should be able to find out the grammatical errors or you should be able to spot the errors in the sentences that I'll give it to you. Then there will be mock tests, and then again brainstorming sessions will continue and puzzles will be given to you. And then in this semester, like 5th semester and 6th semester, you will be able to work on your project. जो मैंने आपको यहाँ पे अवेयरनेस दिया ना प्रोजेक्ट के बारे में, अब आप वो प्रोजेक्ट के ऊपर काम करोगे, मतलब एक मिनी प्रोजेक्ट बनाओगे, छोटा सा प्रोजेक्ट बनाओगे आपकी टेक्नोलॉजी को यूज करके, या इंटर ब्रांच भी हो सकता है, आप मैकेनिकल और ईएनटीसी के बच्चे मिलके भी कुछ कर सकते हो, बट या मैकेनिकल सीएससी के या सिविल सीएससी के या इलेक्ट्रिकल सीएससी के, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज ऑल ब्रांचेस आर नाउ टुगेदर टू मेक सर्टेन आउटपुट। ठीक है, आज कोई अकेला आदमी काम नहीं कर सकता है, आज सारे ब्रांच को मिलके, आज कोई भी बिल्डिंग देखो आप, वहां पे आपको कंप्यूटर साइंस का आदमी लगेगा ही, वहां पे आपको ईएनटीसी का आदमी लगेगा ही, वहां पे आपको इलेक्ट्रिकल का आदमी लगेगा ही, वहां पे आपको मैकेनिकल का और सिविल का लगेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको एक बिल्डिंग बनाना है, आपको एक 50 मंजिला बिल्डिंग बनाना है, तो सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियर चलेगा क्या उधर? यस No. No. सिविल इंजीनियर चलेगा क्या? सिविल नो। सिर्फ सिविल वाला चलेगा क्या उधर? No. No. सिर्फ कंप्यूटर साइंस No. वाला चल जाएगा क्या उधर? No. सिर्फ ये वाला बोलेगा नहीं सर मैं सारे आंसर बिठा दूंगा, ऑटोमेटिक डोर क्लोज ओपन हो जाएगा, सिर्फ मैं सब काम कर लूंगा, तो चलेगा क्या उसका अकेले का? No, sir. नहीं ना। सो वी नीड all together that all branches should work together to create a single project which is useful for the society or which is a product. Okay, so this is what we are planning कि यहाँ पे आप मिनी प्रोजेक्ट करोगे। ठीक है, कहाँ पे हो आप? You are in the 6th semester I think. देखो कहाँ पे हम लोग, 5th semester हो गया, या 5th semester and 6th semester, तो आप यहाँ पे मिनी प्रोजेक्ट करोगे। ठीक है, so I have explained you up to 5th semester. Now we are entering into the 6th semester. अब आप यहाँ पे ऑलमोस्ट आप रेडीमेड मटेरियल हो चुके हैं हमारे लिए, जहां पे हमको जो ट्रेनिंग देना था आपको अलग अलग टेक्नोलॉजी के बारे में, अलग अलग आपके क्या बोलेंगे उसको, कम्युनिकेशन स्किल्स के, देन डे टू डे लाइफ, व्हाट यू शुड टॉक, हाउ यू शुड बिहेव, हाउ यू शुड स्टैंड, सिट, एवरीथिंग इज ओवर। नाउ वी आर स्पेसिफिकली मेकिंग यू टू राइट योर रेज्यूमे। ओके, रेज्यूमे बोलते हैं, बायोडाटा बोलते हैं, करिकुलम विटे बोलते हैं, हम आपको तब बताएंगे कि कब आपको क्या लिखना है, बट यहाँ पे आप एक पेपर पे या 2 पेजेस में आप अपने आप को प्रेजेंट करोगे, क्योंकि सबसे पहले कोई भी कंपनी को आपका यही 2 चीजें जाती है, रेज्यूमे ही आपका पहुंचता है, फिर वो एप्लीकेशन देख के देखते हैं कि नहीं यार ये लड़का मेरे काम का है या नहीं है, फिर मैं इसको बुलाऊं कि नहीं बुलाऊं इंटरव्यू के लिए, या इसको मैं एप्टीट्यूड के लिए बुलाऊं या नहीं बुलाऊं। तो यहाँ पे हम लोग आपको प्रिपेयर करेंगे कि हाउ टू राइट योर रेज्यूमे, क्योंकि यहाँ तक आपको सब कुछ प्रिपेयर हो चुके होंगे आप। एंड बिलीव मी, दिस रेज्यूमे इज नॉट ओनली फॉर जॉब। अगर आप यहाँ से बाहर स्टडीज भी करने जाओगे ना, तो वो भी आपसे 2 पेज का रेज्यूमे मांगते हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए जाओगे 2 पेज का रेज्यूमे लगेगा, यूपीएससी एमपीएससी के लिए जाओगे रेज्यूमे लगने वाला है इंटरव्यू में, कहीं पे भी जाओ आप ये रेज्यूमे लगने वाला है। इवन आप रिसर्च करना चाहते हो, साइंटिस्ट बनना चाहते हो, तो भी आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल इसरो में आप जाना चाहते हो, तो इसरो आपसे डेफिनेटली रेज्यूमे मांगेगा। ओके, देन वी विल प्रिपेयर यू फॉर इंटरव्यू स्किल्स। अब हम यहाँ पे सिर्फ इंटरव्यूज की बात करेंगे, नथिंग मोर देन दैट। आपका प्रोफाइल प्रेजेंटेशन होगा, आप अपने आप को प्रेजेंट करोगे हमारे सामने, एंड देन फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स वी विल बी गिविंग यू कंपनी स्पेसिफिक ट्रेनिंग। कंपनी स्पेसिफिक ट्रेनिंग का मतलब क्या है? जितने भी कंपनीज हमारे कॉलेज को एज अ कैंपस आते हैं, वो कॉलेज के वो कंपनीज आपसे क्या क्या किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं,
किस टाइप का क्वेश्चन पेपर पैटर्न होता है, किस पे वो ज्यादा फोकस करते हैं, आपको उसको सॉल्व कैसे करना है, ये सारी चीजें हम और उसके रिलेटेड हम आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवा के लेंगे. So this is where we will be talking here about company specific. It is specific, okay? I think I is like it should be here. It is company specific training. And again mock test will be there. Brainstorming puzzle तो ये हमेशा ही रहेगा आपके लिए, क्योंकि अभी हम लोग ऑलमोस्ट एंड पे आ रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पे अभी सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी. ना यहाँ पे हमने आपको इंटरव्यू स्किल्स बता दिए कि इंटरव्यू स्किल्स में आपको कैसे बैठना है, क्या करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कैसे आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, ये सारी चीजें बता दी हमने. यहाँ पे हम लोग अभी आपका एक्चुअल मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे 1-to-1. What I'm saying, try to understand that. Here we will try to conduct actual mock which will be 1-to-1. आप लोग हमारे सामने बैठोगे, बाहर से हम लोग एचआर बुलाएंगे, आपके सीनियर्स बुलाएंगे जो ऑलरेडी कंपनी में प्लेस्ड है, अच्छे मतलब पोजीशन में, वो आपके इंटरव्यूज कंडक्ट करेंगे, टेक्निकल एंड पर्सनल दोनों भी. ठीक है. देन अगेन देयर विल बी वैप विच विल बी अगेन ब्रांच स्पेसिफिक. जो ब्रांच से रिलेटेड वैप्स है वो सारे आप कर सकते हो. अगेन यू कैन गो फॉर ब्रांच इंटर ब्रांच वैप्स ऑल्सो. अगर आपको कोई और दूसरे का वैप करना है तो आप कर सकते हो. देन अगेन कंपनी स्पेसिफिक ट्रेनिंग विल कंटिन्यू एंड देन मॉक टेस्ट विल बी देयर, ब्रेनस्टॉर्मिंग विल बी देयर. ठीक है. अप टू 6 semester everything is clear. Hardly we are now left with another 10 minutes to discuss. Up to this everybody is clear. 6 semester vacation. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Fine. Yes, sir. Yes. ये हम आपको कुछ नहीं सिखाने. Yes, 6 semester sir. ये हम आपको कुछ नहीं सिखाने वाले. सोहम प्लीज म्यूट योरसेल्फ. सोहम ओके. यहाँ पे हम आपको क्यों नहीं सिखाने वाले, क्योंकि 7 सेमेस्टर से आपको आपके करियर के हिसाब से जो कंपनीज आ रही है, गेट के एग्जामिनेशन बैठना है, कैट जीमेट का एग्जामिनेशन बैठना है, मुझे फॉरेन जाना है सर, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है. फ्रॉम 7 सेमेस्टर यू विल स्टार्ट अप्लाइंग फॉर योर करियर. तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ आपके मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करेंगे. एक प्रैक्टिस टेस्ट होगा आपका हर बार. कहीं आप कम पढ़ रहे हो तो हम आपको बताएंगे किस चीज पे काम करना है. छोटा मोटा जो भी बोलते हैं ना हम लोग, एंड टचअप बोलते हैं ना, टचअप. जैसे घर बनाने के बाद हम लोग टचअप करते हैं कि नहीं एट द एंड, Finishing. पे होंगी. यस, एनीबॉडी वांट टू से समथिंग? ओके. Finishing, sir. फिनिशिंग या फिनिशिंग जो हम लोग बोलते हैं ना, फाइनल टच, तो वो हम लोग यहाँ पे करेंगे आपका. सो 7 सेमेस्टर का फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर एंड देन 8 सेमेस्टर का फर्स्ट सेम. सेकंड सेम में आप सब प्लेस हो चुके होंगे. उसके बाद हम लोग ज्यादा ये नहीं कर रहे, वहां पे सिर्फ आपको कंपनीज अटेंड करनी है या जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसके बारे में आपको प्रैक्टिस करना है. बट अप टू 8 सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर तक हम आपके साथ टोटली एसोसिएटेड रहेंगे. ठीक है. अब यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट छोड़ दिया था. मिनी प्रोजेक्ट आपका 6 सेमेस्टर तक खत्म हो गया है. 6 सेमेस्टर एंड 7 सेमेस्टर मिला के आपको, और 7 सेमेस्टर या 7 सेमेस्टर से पहले आपको अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है. क्यों करना है? क्योंकि 8 सेमेस्टर में प्रोजेक्ट कॉम्पिटिशन्स होते हैं नेशनल लेवल के, जैसे हैकेथॉन है, हैकर अर्थ है, या देयर आर सो मेनी कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म्स वेयर यू कैन प्रेजेंट योर प्रोजेक्ट्स. तो उससे पहले आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद आप वहां पे प्रेजेंटेशन दोगे. ठीक है ना. जैसे IITs बुलाते हैं प्रोजेक्ट कंपटीशन के लिए, जैसे COEP बुलाता है, जैसे सिंहगढ़ के बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है वो लोग बुलाते हैं, सोलापुर में जैसे WIT है वो बुलाता है, और हम लोग खुद भी बुलाते हैं बाहर के लोगों को, जहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट कॉम्पिटिशन्स रखते हैं. तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट कॉम्पिटिशन में आपका अपना प्रोजेक्ट लेके जाना है, प्रेजेंट करना है, एंड सी दैट यू बैक सम प्राइजेस. ठीक है. तो ये रहेगा. अब आप बोलोगे सर 8वें सेमेस्टर के बाद आप हमको छोड़ दोगे क्या? नहीं. We will be in touch with you till you get what you want. ठीक है ना. Even after 8 semester भी आप हमसे कांटेक्ट में रहोगे जब तक आप आपके सेटिस्फैक्टरी लेवल का जॉब, हायर एजुकेशन या फॉरेन लैंग्वेजेस के लिए या फॉरेन स्टडीज के लिए जाना चाहते हो या गेट क्लियर करना चाहते हो, जब तक आपका ये काम कंप्लीट नहीं होता है, वी विल बी टेकिंग कंटिन्यूअस फॉलो अप विद यू. हम आपको तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप जो आपने हमको यहाँ पे बताया था, गोल सेट किया था ना 3rd सेम में, जब तक आप ये अचीव नहीं करोगे तब तक हम आपको नहीं छोड़ेंगे. ये वाला, जब तक आप इसको अचीव नहीं करोगे तब तक हम आपको छोड़ेंगे नहीं. राइट. I hope that everybody is clear with what is SDCC, what we want to do, what is our aim, what is our motto, and remember that we alone cannot do anything. Only teacher can do everything. ऐसा नहीं होता है. We need your whole support and wholeheartedly support, fully involvement. हर चीज जैसा हम बोलते हैं उसको एक पत्थर की लकीर मारो और करो. अगर नहीं करना है तो हमसे डिस्कस करो कि ये क्यों नहीं करना है. हम आपको बताएंगे क्या सही है क्या गलत है. एंड यू शुड और यू कैन हैव अ वेरी ओपन डिस्कशन विद अस. हम कभी बुरा नहीं मानते कि कोई आके बोले नहीं सर ये आपका पैटर्न ठीक नहीं था.
आप आओ हमारे साथ डिस्कस करो. अगर हमें सही में लगा कि ये पैटर्न गलत है तो हम उसको डेफिनेटली चेंज करेंगे. बिकॉज फाइनल थिंग इज दैट वट एवर वी आर प्लानिंग, वट एवर, मैंने बोला ना मछली की आंख पे तीर मारना है. तो मछली की आंख आपको दिख रही है और तीर कैसे मारना है हम आपको बताएंगे, हम आपको सिखाएंगे, लेकिन वो वहीं पे लगनी चाहिए. ऐसा नहीं हो जाए कि बाबा सर हमने मछली की आंख पे मारना था, हमने मार दिया दीवार पे और हम सेटिस्फाइड है सर, कहीं तो लग गया ना. तो ऐसा नहीं चलेगा. एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Very happy with this, whatever we have designed for you, the curriculum. जो भी हमने डिजाइन किया है. Yes, sir. फाइन. अगर आप खुश नहीं भी हो तो जब कॉलेज स्टार्ट होगा, यू कैन कम एंड पर्सनली मीट मी, then we can do something. If you feel that something else should also be included, then we'll see in which slot we can do that. Okay, fine. So I want a quick feedback from you people in the chat box. Quick feedback कि आपको ये सेशन कैसा लगा? Are you happy with this or not? Quick feedback in your chat box. Quick feedback. अगर सही नहीं लगा तो वो भी लिख दो भाई. ऐसा नहीं है कि आपने अच्छा ही किया सर, ठीक है ना. अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो वो भी लिख सकते हो. नो सर, वी हैव नॉट फेल्ट गुड. ओके, तो दैट आल्सो यू कैन पुट इट इन द चैट बॉक्स. वी डोंट टेक इट नेगेटिवली. Great. That's a great thing. This kind of feedback is now giving us the energy that we can do something even more than whatever we have shown to you. Yeah, great. Thank you very much. Okay. Can you give the PPT on group? Yeah, definitely we'll send it to you. We are making a PPT of it. Now I have shown it on the Excel sheet. We'll make a PPT and we'll give it to you. That's great. Okay, fine. So Deshmukh sir, now it is over to you. You can conclude the session. Thank you, sir. Thank you all. Thank you, students. Thank you, sir. 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 Great. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Yeah, Sakshi Bolsale, we need your support. That's a great compliment.